Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed Unit 16 of your English grammar book. And I'm sure all of you must have completed exercise 6, which was given to you homework that I had made you write the antonyms of the given adjectives. Now your work was to find those antonyms of the adjectives given in the grid given on page number 64. So I'm sure all of you must have found the words in the grid and you must have marked them. And now today I'm going to start with Unit 17, Degrees of Comparison. Beta abhi, in the last unit in adjectives, we had studied that adjectives are words which are used to describe nouns. They describe things. But in this Unit 17, we'll be learning that we use adjectives to compare people, animal, things and places. Beta, whenever we want to compare any person, place, thing or animal, we use adjective. And in Unit 17, we are going to learn about degrees of comparison. So all of you, please take out your English grammar book and turn to page number 65, Unit 17, Degrees of Comparison. Students, please take out your English grammar book and turn to page 65, as I'll be starting with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, now you must know that we use adjectives to compare persons, animals, things or places. And we use degrees of comparison to compare one person or thing to the other. Fine. Now, first of all, you should know that there are 3 degrees of comparison. How many degrees of comparison are there? 3 degrees of comparison. The first is the positive degree. The second is the... Now students, there are 3 degrees of comparison. The positive degree, the comparative degree and the superlative degree. Now I'll be explaining these 3 degrees first with some examples, and later on then I'll be explaining the details of the 3 degrees. Now children, there is a poem given on page number 65. The first stanza of the poem is this puppy is cute. Fine. Then in the next line it is written, these kittens are cuter. And in the third line it is written, but my little sister is the cutest of all. Beta, I've just written the first stanza of the poem. And in this poem, you'll see all the 3 degrees of comparison, which are adjectives. This puppy is cute. In this sentence, we are just describing a puppy. We are not comparing the puppy with anything. This puppy is cute. हम एक बस puppy को describe कर रहे हैं कि एक ये जो puppy है वो cute है. और cute क्या है? Adjective है. और इसमें कोई भी comparison नहीं है, खाली describe कर रहे हैं, है ना? तो ये कौन सा है? Positive degree, जिसमें कोई comparison नहीं होता. Then in the next sentence, these kittens are cuter. Now,
These kittens are cuter. अब यहाँ पे किटन्स को क्यूटर बताया गया। किससे क्यूटर बताया गया? पपी से। किटन्स को पपी से कंपेयर किया गया है कि जो किटन्स हैं वो पपी से ज्यादा क्यूट है ना। तो क्यूट में क्या लग गया? आर लग गया। और कंपैरिजन किस में है? किटन्स एंड पपी में, दो एनिमल्स में कंपैरिजन है। तो ये कौन सी डिग्री है बेटा? ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? when there is a comparison between two persons or two things or two places or two animals, है ना। फर्स्ट हमने पढ़ी पॉजिटिव डिग्री के बारे में, जिसमें हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे दिस पपी इज क्यूट, पपी को खाली डिस्क्राइब किया था, कोई कंपैरिजन नहीं था। बट सेकेंड सेंटेंस में दीज किटन्स आर क्यूटर, किटन्स को किससे कंपेयर किया गया है? पपी से। तो दो चीजों में कंपैरिजन है, तो हम जनरली जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री, उसके एडजेक्टिव में हम लास्ट में आर लगा देते हैं। तो वो क्या हो जाता है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री जो है कब हम यूज करते हैं? जब किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन होता है। फाइन, नाउ लुक एट द थर्ड लाइन। बट माई लिटिल सिस्टर इज द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल। अब बेटा थर्ड लाइन में हमने लिटिल सिस्टर को कंपेयर किया है ऑफ ऑल। ऑल मतलब कि जितनी भी चीजें हैं, उसमें पपी भी आ गए, किटन्स भी आ गए, कि जितनी भी चीजें हैं, दो से ज्यादा चीजों में जब कंपैरिजन होता है तो हम क्या करते हैं? जो एडजेक्टिव है, आप एक दो में हो तो एडजेक्टिव के लास्ट में आपने आर लगा दिया, दो से ज्यादा में है तो आपने एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगाना है? एसटी, है ना। उसके रूल्स है, वो मैं भी आपको आगे समझाऊंगी इस यूनिट में। सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। द फर्स्ट इज द पॉजिटिव डिग्री, इसमें खाली किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। द सेकेंड इज द कंपैरेटिव डिग्री, जहां पे किन भी दो चीजों को के आपस में बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और जो थर्ड डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, उसमें कंपैरिजन जब दो से ज्यादा चीजों में होता है तो हम ग्रेटेस्ट डिग्री, दैट इज दी सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। तो क्यूट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्यूटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और क्यूटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। फाइन। अब पॉजिटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब हम खाली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। और हम जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कब यूज करते हैं? जब किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन होता है। फाइन। नाउ आई एम गोइंग टू erase this and write the second stanza of the poem. Fine. The second stanza of the poem is, these lemons are big. You can see in the picture there are lemons, watermelon and orange, है ना। तीन चीजें आपको पिक्चर में दिख रही हैं। I hope all of you can see in the picture lemon, orange and watermelon. So these lemons are big. Then the next line is, those oranges are big. And the third line is, but these watermelons are the biggest of all.
Now in the picture you can see that lemons are big. The first line of the second stanza of the poem is these lemons are big. यहाँ पे lemons को खाली describe किया जा रहा है कि lemons कैसे हैं, big है. lemons का कोई कंपैरिजन किसी चीज से नहीं है. तो ये big क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, है ना. और सेकेंड सेंटेंस में दोज ऑरेंजेस आर बिगर. अब ऑरेंजेस को किससे कंपेयर किया जा रहा है? लेमन से, कि लेमन से ऑरेंजेस बड़े हैं. तो ये कौन सी डिग्री होगा? और इसमें आप ध्यान से देखो, बिग के बाद एक जी और ऐड किया है तो डबल जी हो गया है, और लास्ट में क्या लगाया है? ईआर. और यहाँ पे कंपैरिजन दो चीजों के बीच में है, लेमन एंड ऑरेंज. तो जब दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. और बेटा जब दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. अब आप थर्ड सेंटेंस में देखो, बट दीज वाटरमेलन्स आर दी बिगेस्ट ऑफ ऑल. जो वाटरमेलन्स है वो बिगेस्ट है ऑफ ऑल से, और ऑल में क्या आ गया? लेमन्स भी आ गए, ऑरेंजेस भी आ गए, है ना. और आप चाहो तो कह सकते हो कि वाटरमेलन सारे फ्रूट्स में बिगेस्ट है ना. हम ऐसे भी बोल सकते हैं. सो जहां पे सिंपली हम किसी चीज को, किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दैट कैन बी एनी एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड देयर इज नो कंपैरिजन, खाली डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कौन सी डिग्री हुई बेटा? वो पॉजिटिव डिग्री हुई. और जब हम किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, है ना, दैट कैन बी टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू एनिमल्स और थिंग्स, तो वो कंपैरेटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री जनरली कैसे फॉर्म होती है? पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में आर या ई आर लगा दिया जाता है. उसके रूल्स हैं जो अभी मैं आपको समझाऊंगी आगे इस यूनिट में. एंड बेटा जो थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, वो हम कब यूज करते हैं? दैट इज द ग्रेटेस्ट डिग्री. जब कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है. वो कंपैरिजन इट कैन बी in persons, in animals, things और places. So आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन. कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में जो कंपैरिजन है दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है. क्लियर? सो बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में आपने देखा कि BIGG, उसमें लास्ट में क्या लगा है? EST. इसके रूल्स हैं विच विल बी लर्निंग अहेड इन दिस यूनिट. सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड राइट द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम. These apples are crunchy, fresh, carrots are crunchier, but these potato wafers are the crunchiest of all. Now, as you can see in this picture, beta, है ना, three things are there: apples, carrots and potato wafers. Now, the third stanza of the
says these apples are crunchy. एप्पल्स को कौन सा वर्ड बेटा डिस्क्राइब कर रहा है? क्रंची. क्रंच का मतलब आप जानते हो ना, जब आप एप्पल का एक बाइट लेते हो तो कड़ंग से आवाज आती है, दैट इज द क्रंच. सो दीज एप्पल्स आर क्रंची. यहाँ पे एप्पल्स को खाली डिस्क्राइब किया गया है कि दे आर क्रंची. एप्पल का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है. तो ये क्रंची कौन सी डिग्री हुई बेटा? पॉजिटिव डिग्री. नाउ द सेकेंड लाइन, फ्रेश कैरेट्स आर क्रंचियर. कि जो फ्रेश कैरेट्स हैं, है ना, वो उससे भी ज्यादा, किससे? एप्पल से ज्यादा क्रंचियर होते हैं. तो यहाँ पे आपने देखा वाई हट गया और लास्ट में क्या लग गया है? IER. और यहाँ पे कंपैरिजन किस में है? एप्पल्स में और फ्रेश कैरेट्स में. दो चीजों में कंपैरिजन है और इसमें लास्ट में वाई हट के IER लग गया है तो क्रंचियर हो गया है. तो ये कौन सी डिग्री हुई बेटा? कंपैरेटिव डिग्री. नाउ द थर्ड लाइन, बट दीज पोटैटो वेफर्स आर द क्रंचिएस्ट ऑफ ऑल. अब सुपरलेटिव डिग्री में भी वाई हट गया क्रंची का और इसमें क्या लग गया? IEST. और यहाँ पे कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों में ऑफ ऑल, कि पोटैटो वेफर्स, कैरेट्स एंड एप्पल्स इनसे भी ज्यादा क्रंचियर है ना, क्रंचीएस्ट है, सॉरी. तो जब दो से ज्यादा चीजों में कंपैरिजन हो तो वो कौन सी डिग्री है बेटा? सुपरलेटिव डिग्री. फाइन. सो क्रंची पॉजिटिव डिग्री, क्रंचियर कंपैरेटिव डिग्री एंड क्रंचीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री. फाइन. सो आपको बस ये याद रखना है कि जो पॉजिटिव डिग्री उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता. वी सिंपली डिस्क्राइब एनीथिंग, या किसी भी चीजों को किसी के इक्वल समझा जाता है ना, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, जहां इक्वल समझा जाता है वो पॉजिटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन है बट दो चीजों के बीच में, है ना. और सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन है दो से ज्यादा चीजों के बीच में. फाइन. नाउ now the fourth stanza of the poem. Line, water is good. Then the second line is apple juice is better. And the third line is but homemade. homemade मतलब घर का बना हुआ. homemade आमंड, आमंड जानते हो ना, बादाम को बोलते हैं. आमंड मिल्क शेक is the best of all. Now, fourth stanza poem की. Lime water is good. Lime water को खाली डिस्क्राइब किया जा रहा है, कोई कंपैरिजन नहीं है. तो ये गुड क्या है बेटा? पॉजिटिव डिग्री. Now the second sentence, apple juice is better. Apple juice किससे better है? That means lime water से क्या ज्यादा अच्छा है? Apple juice. तो good की जो comparative degree है वो क्या है बेटा? Better, है ना. अब मैं आपको ये अलग अलग पोएम में एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कहीं पे लास्ट में R लगता है ना, कंपेरेटिव डिग्री में कहीं ER लगता है, कहीं Y हट के IER लगता है, और कहीं पे वर्ड ही चेंज हो जाता है. तो इन डिग्रीज के चेंज होने, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज होने के कुछ रूल्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो आपने देखा गुड पॉजिटिव डिग्री है और इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज व्हाट? बेटर. तो एप्पल जूस किससे बेटर है? लाइम वाटर से. बट होममेड आमंड मिल्क शेक,
बट घर का बना हुआ जो आमंड मिल्क शेक है इज द बेस्ट ऑफ ऑल, और वो क्या है, इज द बेस्ट ऑफ ऑल. नाउ इज द बेस्ट ऑफ ऑल. और ये जो सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों में. तो यहाँ पे आमंड मिल्क शेक को किससे कंपेयर किया गया है, एप्पल जूस से और लाइम वाटर से. नाउ एक चीज और आप नोट करो, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हमेशा क्या आता है, द. इफ यू लुक, हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आया है. द क्यूटेस्ट, द बिगेस्ट, द क्रंचीएस्ट, द बेस्ट. सो हमेशा याद रखना, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमेशा क्या आता है बेटा, द. पॉजिटिव डिग्री कब हम यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं या कोई एक चीज दूसरे चीज के इक्वल है, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं. और कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब कोई दो चीजों में कंपैरिजन हो. और कंपैरेटिव डिग्री में जनरली लास्ट में आर या ई आर ऐड होता है. पॉजिटिव डिग्री के तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है. और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है. और सुपरलेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो. फाइन. सो यहाँ पे गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, बेटर. एंड सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट. नाउ the last stanza of the poem. Sugar is really sweet. Sugar is really sweet. Honey is even sweeter. And the last line is, but my mom's smile is the sweetest of all. Now, the last stanza of the poem. Sugar is really sweet. Sugar को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि शुगर का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है. तो स्वीट क्या है, पॉजिटिव है. क्यों पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ पे शुगर का को हम खाली डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है. सेकेंड सेंटेंस देखो, हनी इज इवन स्वीटर. हनी किससे ज्यादा स्वीटर है, शुगर से. तो हनी का किससे कंपैरिजन है, शुगर से. तो दो चीजों में कंपैरिजन है. तो स्वीट के जो पॉजिटिव डिग्री स्वीट है उसमें एंड में क्या ऐड कर दिया, ई आर. तो क्या हो गया बेटा, कंपैरेटिव डिग्री. अनकंपैरेटिव डिग्री में हमेशा कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है. नाउ द थर्ड लाइन, बट माई मॉम्स स्माइल इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. लेकिन मेरी जो मदर की स्माइल है वो सबसे स्वीटेस्ट है. मदर की स्माइल का कंपैरिजन किससे है, हनी से, शुगर से, एंड जितनी भी चीजें हैं सबसे है. एंड यू कैन सी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगा है, द. और इसको कैसे फॉर्म किया, स्वीट के एंड में क्या ऐड कर दिया, ई एस टी, है ना. ई एस टी ऐड कर दिया तो क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री. इसमें स्वीट में ई आर ऐड किया तो क्या बन गई, कंपैरेटिव डिग्री. एंड स्वीट तो पॉजिटिव डिग्री है. सो स्टूडेंट्स, अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री. नाउ I'll explain this. So students, now you should know that we use adjectives
टू कंपेयर पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लेसेस। हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल और प्लेसेस को कंपेयर करने के लिए। नाउ you should know that there are 3 degrees of comparison। बेटा 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। फर्स्ट कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। और अभी हमने जो पोएम पढ़ी उसमें से एग्जाम्पल्स क्या थे बेटा? पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स क्यूट, बिग, क्रंची, गुड एंड स्वीट। ये अभी हमने जो पोएम में वर्ड्स पढ़े उसमें से है ना, कि पपी इज क्यूट, lemon is big, apple is crunchier and lime water is good and sugar is sweet। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको याद रखना है कि हम बेटा जो है कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं करते। पॉजिटिव डिग्री हम खाली यूज करते हैं किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए या बताने के लिए कि कोई भी चीज किसी के इक्वल है। सो पॉजिटिव डिग्री में देयर इज नो कंपैरिजन, वी यूज दिस डिग्री टू डिस्क्राइब अ थिंग, और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, हम उसको जब हम कोई दो चीजों को इक्वल बताते हैं, है ना, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। फाइन। जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं, दो चीजें एक दूसरे के इक्वल है, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। फाइन। सो पॉजिटिव डिग्री वी यूज, ये फर्स्ट डिग्री है और ये हम यूज करते हैं किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए या बताने के लिए कि दैट पीपल और थिंग आर इक्वल इन सम वे, वो इक्वल है इन सम वे। देन द सेकेंड इज द कंपैरेटिव डिग्री। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जो भी हमने पोएम में क्या पढ़े बेटा? क्यूट का क्या हो गया था? क्यूटर। क्यूट में आर लग गया। बिग का क्या था? डबल जी ई आर, बिगर। क्रंचियर के लास्ट में वाई है तो वाई को रिमूव करके आई आर लगा दिया, क्रंचियर। और गुड का जो कंपैरेटिव है दैट इज बेटर, और स्वीट का जो कंपैरेटिव है दैट इज स्वीटर। तो कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और टू प्लेसेस और टू एनिमल्स और टू थिंग्स। कोई भी दो चीजों में जब कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। एंड बेटा आपको एक चीज और दिमाग में रखनी, कंपैरेटिव डिग्री के जनरली बाद में देन आता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है बेटा? देन आता है ना। सो ये ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब किन्हीं दो चीजों में कंपैरिजन हो। ठीक है, वो दो एनिमल्स भी हो सकते हैं, दो पर्सन्स भी हो सकते हैं, दो प्लेसेस भी हो सकती हैं और दो थिंग्स भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, है ना। वन इज अंकित, द अदर इज अनिरुद्ध। अब अंकित और अनिरुद्ध में आप कंपेयर कर रहे हो कि अनिरुद्ध इज टॉलर देन अंकित, अनिरुद्ध जो है अंकित से टॉलर है। तो किन दो बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है? अनिरुद्ध और अंकित।
सो जब दो बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है तो आप कौन सी डिग्री, टॉलर क्या हुआ, क्या हो गया बेटा, टॉलर आपके कंपैरेटिव डिग्री। बट अगर आप तीन बच्चों में अगर कंपैरिजन करोगे, सपोज आप अंकित में, अनिरुद्ध में और साक्षी में कंपेयर कर लोगे, तो अनिरुद्ध, साक्षी एंड अंकित। अंकित इज टॉल, हम क्या लिखेंगे, अंकित इज टॉल। साक्षी इज टॉलर देन अंकित, साक्षी किससे टॉलर है, अंकित से टॉलर है, दो लोगों में कंपैरिजन। बट अनिरुद्ध इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन अनिरुद्ध जो है वो सबसे टॉलेस्ट है। तो अंकित, साक्षी और अनिरुद्ध जब तीनों में कंपैरिजन हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हुई, टॉलेस्ट। टॉल जब हमने खाली बताया कि अंकित इज टॉल, साक्षी इज टॉलर देन अंकित, यहाँ पे साक्षी और अंकित दो लोगों में कंपैरिजन हुआ, लेकिन अनिरुद्ध इज टॉलेस्ट ऑफ द ऑल। अंकित, साक्षी और अनिरुद्ध जब तीन लोगों में कंपैरिजन हुआ तो हमने कौन सी डिग्री यूज की, टॉलेस्ट, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने क्या बताया, जैसे कंपैरेटिव डिग्री के बाद जनरली देन आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आता है, तो ये आपको याद रखना है। नाउ द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। और इसके बेटा एग्जाम्पल्स हैं। क्यूट का क्या हो जाएगा, क्यूटेस्ट। बिग का क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। क्रंची का क्या हो जाएगा, क्रंचीएस्ट। और बेटर का क्या हो जाएगा, बेस्ट। और सॉरी, गुड का हो जाएगा बेस्ट, और स्वीट का हो जाएगा स्वीटेस्ट। और आपको बेटा हमेशा याद रखना है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले हमेशा द आता है। सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले बेटा द आता है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन आता है। ये याद रखना कि सुपरलेटिव डिग्री जहां भी होगी, हाँ, तो उसके पहले द क्यूटेस्ट, द बिगेस्ट, द क्रंचीएस्ट, द बेस्ट, द स्वीटेस्ट, हमेशा द कम्स बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। ये आपने आर्टिकल्स पढ़ोगे उसमें भी अभी आपको आएगा कि द जो है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है। और जो कंपैरेटिव डिग्री है जिसको हम यूज करते हैं जब दो लोगों को कंपैरिजन करते हैं, तो जनरली हम डिग्री के बाद THAN देन लगाते हैं कि टॉलर देन, शॉर्टर देन, बिगर देन, है ना। और ये आप हमेशा याद रखना, ये क्लू है। और जो पॉजिटिव डिग्री है उनके पहले बेटा हमेशा वेरी, है ना। साक्षी इज अ वेरी क्यूट गर्ल, है ना। समीक्षा इज अ ब्राइट गर्ल, शर्वीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो हमेशा जब हम किन भी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले ए, वेरी, एन, ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं। ये बेटा आपको याद रखने हैं। फाइन, ए, एन, वेरी, एज, ये वर्ड्स किसके पहले आते हैं, पॉजिटिव डिग्री के पहले, क्योंकि वहां पे हम खाली किसी को डिस्क्राइब करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री के जनरली बाद में देन लगाते हैं क्योंकि दो चीजों में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले द लगाते हैं क्योंकि दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। So that's all for today, children. I'll be continuing with this unit in my next video. Thank you, students. Have a good day ahead.